is not the time to sleep. See the world, the nature, greenery and birds. Hear of the sounds of their welcoming all. The beautiful morning awaits you to welcome. See the world of joy that's kept for you. See the children walking through the pathway, heading towards the temple of learning with full enthusiasm and zest, carrying their bags and other tools to discover the world of learning, to shape their future. The sign of respect, honor and gratitude going out of your way from a sincere heart to notice someone, appreciate someone, honor someone and hold someone dear is the right emotion and attitude which marks our character, humility and nobility. No one was ever honored for what he or she received. Honor has been the reward for what he or she gave. Today, we are honoring our chief guests and other dignitaries with the badge, aarti and tilak, and thus acknowledging our gratitude and honor for what they have done for our betterment. It's the sign of reverence and dignity and their generosity and nobility towards us. I kindly request all the guests to take their seat. Honorable Chief Guest, Your Lordship, Bishop Theodore Mascarenhas, the Auxiliary Bishop of Ranchi, Archdiocese, and the Administrator of the Catholic Diocese of Darjeeling.
Reverend Father Maurice Topo, the Director of CCMBE, Reverend Father Augustine, the Manager of our school, respected Sister Sylvia, the Principal of the school, beloved parents, dear teaching and non-teaching staff, and all my dear friends. A very warm welcome to one and all on the occasion of the celebration of declaration of affiliation of our school. Indeed, all of you are blessings to us, and your valuable presence has doubled our joy to lift us up our spirit in celebration. To start with, may I call upon our friends to present our welcome song and delight us with their melodious, sweet voice. Thank you, dear friends, for your melodious song. Edwin Harvey has rightly said, a day without prayer is a day without blessing, and a day without life is a prayer without power. May I now invite Avinav Kumar and Anvi Kumari to lead us to prayer, in which turn will strengthen us with tremendous spiritual power. Let us join our hands and close our eyes. Each time another day greets us with new insights and hope. We have an opportunity to praise, to see where we have been, to notice how far we have come, and to ponder how our journey has been for us in St. Paul's Academy.
we ask you to bless every people who has Almighty God, on this special day, we ask you to bless every people who have worked hard right from the beginning of this school till today to make this event come true. Especially we pray for Bishop Gabriel Jojo, Bishop Anand Jojo, Bishop Theodore Mascarenas, CCMB members, Father Levin Topo, Father Augustine Kess, all the principals, fathers, sisters, teachers, helpers, students, parents, benefactors, and all well-wishers. Lord, we implore your blessings upon each one of them. Keep them always united to your great light to glorify your name forever. Amen. Visual blessing. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can wipe it away. In the same way, it's only the light of education that can wipe out the darkness of ignorance, injustice, and division in society and lead us towards growth, liberty, and equality. All are requested to kindly stand up for the lighting of the lamp. For our path. So let the lighting of the lamp be a symbolic act to make us realize that light may dispel the darkness of our life and lead us to the light of wisdom and knowledge. On this positive note, I would like to invite your Lordship, Bishop Theodore, Director of CCMBE, Reverend Father Augustine, the Manager of our school, respected Sister Sylvia, the Principal, respected Mr. N.K. Kushwaha, Mr. Simon Matthew Ashley, Sanjay Soni, and Mumtaz Rahi to come forward to light the lamp. This opportunity to hand over the mic to Father Manager to felicitate our chief guest and other dignitaries. Your Lordship, Bishop Theodore Mascarenas, the Administrator of Catholic Diocese Daltonganj, Maurice Topo,
Director of CCMBE, Sister Sylvia, the Principal of St. Paul Academy, Sir Mukesh, the Mediator for Affiliation, Simon Asle Matthew, Well-Wisher, Sanjay Soni, Well-Wisher, and Mumtaz Rahi, Well-Wisher. May I call upon you to come on the stage, all of you. I will announce. Should I tell sister? Honor our dignitaries with bouquet. To our bishop. Father Maurice Topo, CCMB Director. Mukesh Kumar. Simon Matthew Asle. Mumtaz Rahi. And finally Sanjay Soni. So I now take this opportunity to do the honor by Father Manager, Father Augustine Case, with a shawl. Your Masteress, we honor you and we welcome you in our midst.
Father Maurice Toppo, the Education Director of CMBE, we take this pleasure to honor you. Mr. Mukesh, for all his hard work, we honor you in our midst. Mr. Simon Ashley, we are here to honor you and thank you. Mr. Rahim Mumtaz, the well-wisher of our institution. Sanjay Soni, the well-wisher of our institution. Thank you, dear Father Augustine, for doing the honor with a shawl. This is a little token of our love from our institution to His Lordship, Bishop Theodore Mascarenhas. Thank you. Thank you, Father Manager, for doing the honor to the chief guests and other dignitaries. May I invite Anvi Kumari to brief us with the purpose of today's program. The purpose of the day. Affiliation is the strength that allows us to join with others to create something stronger, more adaptive and more creative than any individual. An affiliated school is an educational institution that operates independently and also has a formal collaborative agreement with another, usually larger institution that may have higher level of influence over its academic policies and standards. The first and the most important benefit of the affiliated school is the recognition it holds under an educational board. The schools which are affiliated to CBSE and ICSE boards of the education are counted amongst the most preferred and reputed schools. And now we can say proudly that we have achieved this success to be recognized as an affiliated school. Each one of us has an equal effort behind this success because only by working together we can achieve it. So, we have every reason to celebrate this occasion and enjoy the success we have achieved together. Thank you. As we have invoked God's blessings upon us, now may I invite our friends for their prayer dance as thanksgiving to our loving Lord for the manifold blessings we have received upon St. Paul's Academy. दुनिया की भीड़ में मैं कितना तन्हा पाता हूँ, वो मिल जाए तो चैन मिले, उस दर पे सजदा चाहता हूँ।
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। तू खुद की खोज में निकल, किसमें हताश है? तू खुद की खोज में निकल, किसमें हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Has Seaman already started or what? Started? That is the part of the skit. No? Yeah, it looks quite natural. अदरक मसालेदार चाय ले लो, बस 10 रुपए का 10 रुपए का चाय ले लो, अदरक वाली चाय, अदरक वाली मसालेदार चाय ले लो। नमस्कार भाई साहब, कहाँ जाना हो बच्चे को लेकर? नमस्कार भाई, बच्चे को लेकर इसको मैं भर्ती करवाने जा रहा हूँ। अंग्रेजी माध्यम स्कूल। हाँ भाई, पुराने जमाना पहले लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या नाम है बच्चे का? So students, today we will learn alphabet. एडमिशन कराना। बच्चे का क्या नाम है? A. आयुष नाम है। Repeat after me. B. एडमिशन करवाना। C. बच्चे का नाम? D. राहुल। E. F. G. H. I. बच्चे का एडमिशन। J. बच्चे के L. M. N. O. P. Q. R. S. बच्चे का एडमिशन करवाना है। U. V. आयुष। W. X. Y. Z. Now stand up everyone. Now we will learn rhymes. So repeat after me. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. So now we will do Johnny, Johnny, yes Papa. Johnny, Johnny, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Telling a lie, no Papa. Open your mouth. Okay. Hello.
Chico, silly, 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 go. Chakadum, chiki, chakacho. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। Theodore Mascarenhas to enlighten and bless us with his words of wisdom and blessings. Garwa, that is this school, is now recognized as an affiliated school under CISCE New Delhi. Reverend Father Augustine, managers, Sister Sylvia, principal, Father Morris Tokpo, CMD, Father Morris Kujur, Father Amit, sisters, Fatima sisters who are here, sisters, my dear brothers and sisters, and my dear children. आप सबों को बधाई। बधाई इसलिए क्योंकि एक स्कूल को 13 साल के बाद एफिलिएशन मिल गया, और एफिलिएशन मिलने का मतलब ये होता है कि अब से
ये स्कूल अपने बच्चों को 10th स्टैंडर्ड एग्जाम को भेज सकते हैं ऑफिशियल। न सिर्फ इतना, इस स्कूल का नाम अभी CISE, जो भारत के सबसे 2 बड़े अंग्रेजी मीडियम बोर्ड है, उसके आंकड़ों में दाखिल हो। जो बच्चा स्कूल से अपनी 10th स्टैंडर्ड एग्जाम करेगा, उसको ICSE, अभी उसको CIC सेंट्रल बोर्ड बोलते हैं, उससे सेट। और इस बोर्ड की इतिहास ऐसी है कि ये बोर्ड दिल्ली में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हाई स्कूलों के संपर्क में, इसलिए आप लोगों को बताएं। मिलना आसान नहीं होता है, काफी इंस्पेक्शन होते हैं, जैसे पता क्रिस्टीना पर सिस्टर सिल्वी आप लोगों को बताएंगे। और सब इंस्पेक्शन करने के बाद यही मिला। तो मेरे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि सबों को आसान होगा समझने के लिए। मैं आप लोगों के सामने कई मुद्दे लगाना चाहता हूँ। पहली बात है, मैं डाल्टनगंज का 10 महीने से प्रेरित एक प्रशासक हूँ, मतलब पोप के नॉमिनेशन लेके एक डायसिस के लिए देखने के लिए। तो कैथोलिक चर्च जिसका हिस्सा डाल्टनगंज डायसिस है, और जो भी बोले मैं बोलना डरता नहीं हूं, उसके मिशनरीज यहां क्यों हैं। पहली बात है, हम यहां हैं इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु हमें सिखाता है दूसरों का प्रेम करना है, दूसरों की सेवा करना। और विशेष करके कैथोलिक चर्च पूरे दुनिया में, लेकिन भारत में भी 3 क्षेत्रों में अपना काम चलाते रहे। पहला क्षेत्र है एजुकेशन। 85,000 स्कूल है कैथोलिक चर्च के पूरे भारत में, 85,000। और हर साल बहुत ही बच्चियां स्कूलों से पास होके आगे बढ़ते हैं। मैं भी 6 साल बठिंडा में, पंजाब में इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रिंसिपल था। और कभी कभी इतनी भीड़ होती है, ऊपर से भी फोन आते हैं एडमिशन मिलने के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम पूरे कोशिश करते हैं जैसे हमसे होते हैं क्षेत्र के अनुसार बच्चों को सबसे अच्छी पढ़ाई देने। इसलिए आप लोग देखेंगे 1-2 जनरेशन लगेंगे यहाँ के लोकल टीचर मिलने को। रांची से, ओडिशा से, नॉर्थ ईस्ट से भी यहाँ टीचर है जो आप लोगों के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। वो भी त्याग कर रहे हैं, वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा है। तो ये हमारा पहला उद्देश्य है कि आप लोगों के बच्चों को न ही पढ़ाई, लेकिन जिंदगी में आगे तत्वों के अनुसार आगे कैसा जाए, ईमानदारी के साथ पूरे अपने कोशिश करते, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये बच्चों को सिखाना। एक छोटे छोटे बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से आज प्रोग्राम करते हैं। मैं सिस्टर लोगों को, टीचर लोगों को बधाई देता हूं। यही कॉन्फिडेंस के साथ उनको जिंदगी में आगे बढ़ाना, ये हमारा
पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है क्या हम धर्म नहीं सिखाते तो डरना मत। आप लोग देखिए मिलियंस भारत निवासी हमारे स्कूलों से पास हो गए। यदि जैसे कोई बोल रहे हैं कि हम धर्मांतरण करते हैं तो आधा भारत जो हमसे बड़ा है वो क्रिश्चियन होना चाहिए। नहीं हुआ क्योंकि अपनी आज़ादी है, अपनी जिंदगी एक है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे 15 में से 12 प्रेसिडेंट भारत के कैथलिक स्कूल से पास हो गए हैं। 16 में से 14 प्राइम मिनिस्टर कैथलिक स्कूलों से पास हो गए हैं। भारत तो क्रिश्चियन नहीं बना तो डरना मत, यहाँ धर्मांतरण नहीं होता है। मैं खुद बोलता हूँ और बोलते जाऊंगा। जो बोलते हैं भोगते हैं उनको भोगते रहे। आप लोगों के बच्चों की सेवा करते हैं और सेवा करते रहे। दूसरा, माँ बाप मैं बात करना चाहता हूं। देखिए बच्चों का एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है। इसलिए हम जानते हैं आप लोग भी प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ टीचरों का काम नहीं होता है। जब आप लोग साथ देंगे तब ये बच्चों को बढ़ावा मिलता है आगे बढ़ने के। तब ये बच्चे अपनी पढ़ाई में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। दुनिया भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, टेक्नोलॉजी से भाग रहा है, साइंस से भाग रहा है। हम बहुत पीछे हैं, हम जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे कदम लगाते हुए एक बच्चों को बड़े करते हुए मेरा सपना यह है कि हमारे झारखंड के हर एक गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए जहां अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। उसी के साथ अपनी मातृभाषा नहीं भूलना, बच्चों को सिखाना है। संस्कृति नहीं भूलनी है। संस्कृति चले गए तो सब कुछ चला गया। ये जो इंग्लिश मीडियम होता है वो एडिशनल होता है, जॉब्स के लिए, करियर के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अपनी जो बेसिक संस्कृति है वो संभालना। तीसरा, भेदभाव और विभाजन के हम विरोध हैं। यहां न ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान, न सरना, कोई ऐसा नहीं है। सब एक बच्चा इंसान है, इंसान। हर एक जन कोई भी धर्म के हो जाए, ये भगवान के बच्चे हैं। और मेरे टीचरों से, फादरों से, सिस्टरों से यही निवेदन है, एक एक बच्चा को जितना स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं भगवान के बच्चा को देते हैं वैसा ही देना। और बच्चों को भी मैं बताता हूं और आप लोगों को बताता हूं, जो आप लोगों के बीच धर्म के, भाषा से विभाजन करता है ये देशद्रोही है। हम एक रहना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तभी हमारे देश की उदरगत होगी। और आखिरी, मेरे बच्चों को God has given you this chance. स्कूल में पढ़ना प्रभु ने दिया हुआ आप लोगों को मौका है। इसको खोना नहीं, उसको बर्बाद नहीं करना। खेलने का भी है, मजाक करने का भी है, लेकिन आप लोगों का स्कूल में, घर में जब तक बड़े होंगे पहला काम अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, अच्छा तरह से व्यवहार से, माँ बाप का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, नियम रखना,
तभी अच्छे बच्चे बनेंगे, तभी अच्छे इंसान बनेंगे। आप लोग हमारे भविष्य हैं, और जो हम कर रहे हैं, फादर लोग, सिस्टर लोग, आपके माता पिता, टीचर लोग, आप लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे बैंक डिपॉजिट जैसे हैं। बड़े हो जाएंगे, माँ बाप का ख्याल करना, उनका केयर लेना, समाज को वापस देना। लेकिन अब की ड्यूटी पढ़ाई करना, ये मोबाइल के पीछे पीछे नहीं भागना। आधा घंटा पर डे ठीक है, उससे ज्यादा बीमारी होगी। समझ गए? थोड़ा सा खेलना ठीक है, बहुत ज्यादा करना मोबाइल की बीमारी लगती है। मोबाइल की बीमारी यहाँ लगती है, यहाँ पढ़ाई करते, ठीक है? So we want you to get good results. We want you to become big, great, and people who contribute to society. फादर अगस्टिन को विशेष तरह मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से पहला दिन से मैं यहाँ आया, मेरे पीछे पीछे पड़ा था, ये करना है, वो करना है, वो करना है, भागते देखा सिस्टर लोगों के साथ, सिस्टर सिल्विया और टीचर लोगों के साथ। जो काम आप लोगों ने किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी माँ बाप के नाम, बच्चों के नाम और डायसिस के नाम पे बधाई देता हूँ, और आप सबों को प्रभु की आशीष मांगते हुए मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। And elevated by your encouraging presence. रे सुंदर झारखंड रे, मोर छोटा नागपुर रे। May I invite standard 1st to 3rd students to perform their Jharkhandi dance.
most respected, our honorable today's chief guest, His Excellency, Right Reverend Bishop Theodore Mascarenhas, the Administrator of Catholic Diocese, Daltonganj. All the honorable guests, teachers, students, and my dear guardians. Today it was decided for us to have this beautiful day to proclaim the affiliation of this institution. We are very proud to hear this affiliation, the word, the proclamation from our Bishop Theodore Mascarenhas. Though he has lot of times for many things, and he has given for us also the golden period to announce this affiliation day, 11/11/2022. It is a fitting date for all of us to hear that our school, this St. Paul Academy has received now the affiliation. Now it is free from every type of hindrances, especially the examination. Now our students, they will appear from this same institutions. Before we were going to Ranchi and other places, but now onwards our students will appear for the exam from this same institution, from same St. Paul Academy. I would like to appreciate all of you, guardians, parents, teachers, students, and my honorable guests. It is that you have sacrificed a lot of things to achieve this beautiful day, this affiliation day, and I also pray that all of you continue to pray for this institution, pray for our teachers, pray for our children, pray for the future, that we can, from this Garwa, shine in our department, education department, in the world, and at least in our country. Especially today, I would like to express my sincere gratitude to Reverend Father Augustine Hess, the manager, who ran for this affiliation day, for this affiliation, night and day, he tried his best. In the same way, the principal, Sister Sylvia, she also tried her best to help him, and both of them, they tried for this day. Even our teachers, they helped them day and night, and they received, they got the final goal of affiliation. And all of you, my dear parents, friends, students, honorable guests, I continue to wish you this institution grow every day in higher and higher and higher in education. May the effort, hard work may give them glory to this institution and to their respected
beloved parents. I would like to say a couple of things, especially for the parents, dear guardians, as we have gathered here today. Continuously you help and pray for us so that this school, this institution continuously grow in deeper faith. Deeper faith means that all of them, they would like to love one another. They would like to become a best human persons, so that all of them, all of us, we can share the love of God in this world. Thank you so much for giving me this best opportunity. Thank you. For your encouraging and revitalizing words. To the stage and standard, what we see it today. Helping our children to desire the right things and making the correct choices in life. Good morning. Students, now take your seats. Dear students, I have told you to study and come on the topic मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो जानते हो या महसूस करते हो, ये लेख 150 से 200 शब्दों में होना चाहिए। कोशिश करना कि तुम जो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखोगे वह सत्य प्रमाणित हो। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, जस्ट टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट राइट नाउ। Students, I will be back in few minutes. Please maintain the silence. May I come in, sister? Yes, come in. Sister, I want to talk to you. Have a seat. Tell me, what happened? What is the matter? सिस्टर, कुछ बात कहनी थी। बात ही कुछ ऐसी है कि बोलिए, आप घबराते क्यों हैं? आज क्लास 8 में बच्चों का टेस्ट था। इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। ओके, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब मैं प्रदीप का पेपर चेक कर रही थी तो मैं अचानक से दंग रह गई, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। ऐसा क्या लिखा प्रदीप ने टेस्ट में? सिस्टर लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मामला मालूम हो जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं।
मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाया करती हैं और मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा जी के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे ही करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाते थे। कभी कभी खेलते खेलते धाप गिरते थे तो वे रोने लगते थे। तब मेरे दादाजी उन्हें उठाकर गोद में ले जाया करते थे तो वे चुप हो जाया करते थे। लेकिन अब मेरे दादाजी को जब मेरे पापा जी की सहारे की ज़रूरत है तो वे अपनी जिम्मेदारियों और सेवा करने से पीछे हट रहे हैं। और मेरी माँ अब मेरे दादा दादी को अक्सर कोसते रहती है और कहती है जब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ मेरे दादा दादी को ना तो समय पर खाना देती है और ना दवा दारू। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरे उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनके बात करूँगा या उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुरानी ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। यह तो सच में टेंशन की बात है। हमें प्रदीप से इसके बारे में बात करनी होगी। यस, कम इन। काजी बेटा, क्लास 8 से प्रदीप को बुला कर लाइए। ओके सिस्टर। Yes, come in. Come here, Pradeep. Yes, sister. How are you, Pradeep? I am fine, sister. क्या आपने जो टेस्ट में लिखा वह सच है? Yes, sister. मैं कभी झूठ नहीं बोलता। Cool down, Pradeep. Cool down. आज के बाद आपको आपके दादा दादी से दूर नहीं रहना होगा। ये मेरा वादा है। I promise it. अब आप अपने क्लास में जाइए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। Okay, sister. टीचर, लीजिए, फोन कीजिए प्रदीप के माता पिता को और बोलिए कि प्रिंसिपल सिस्टर आज ही उनसे मिलना चाहती है। हेलो, हेलो, कौन? हेलो सर, क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप की क्लास टीचर बोल रही हूँ। प्रिंसिपल सिस्टर आपसे मिलना चाहती हैं। आपको आज ही स्कूल आना होगा। क्या टीचर कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आइए। ठीक है, मैं स्कूल छुट्टी होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।
May I come in, sister? आइए सर आइए, बैठिए। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते सर। क्या बात है सिस्टर, आपने हमें स्कूल बुलाया? दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है सिस्टर, क्या प्रदीप ने कोई शैतानी की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसके बारे में मुझे आपसे बताना जरूरी है। आज के बाद आप कभी भी प्रदीप से हिंदी में बात नहीं करेंगे क्योंकि वह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा में बात करेंगे तो वह इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, इसीलिए आप उससे हिंदी में बात नहीं करेंगे। आई होप यू विल कोऑपरेट। सिस्टर, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और हमने कभी इंग्लिश बात भी नहीं किया। ये तो मुश्किल है सिस्टर, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है सर, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़े दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, पर तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करेंगे जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सिस्टर, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, इसलिए हम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाया ताकि वो हमसे बेटर एजुकेशन प्राप्त कर सके और कामयाब बन सके। हमें इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से बात करना बंद कर दें। वो हमारा खून है, हमने उसे जन्म दिया, हम उससे बिना बात किए कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल सही कहा सर। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर लाइफ में एक कामयाब इंसान बने। हर पीढ़ी अंतराल के साथ सोच परिवर्तित होती है, इसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। सिस्टर, पर आप ये सब मुझको क्यों बता रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके सोचने और आपके बेटे के सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सिस्टर, क्योंकि जो सुविधाएं हमारे बच्चे को दी जा रही है वो सुविधाएं तो हमारे टाइम में थी ही नहीं। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ मिस्टर अग्रवाल, क्या जो सुविधाएं आपके पापा के टाइम में थी वो आपके टाइम में थी? नहीं सिस्टर, उस समय तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर स्कूल हुए भी करते थे तो सभी स्कूल पढ़ने नहीं जाया करते थे। इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। साफ साफ कहिए सिस्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यह है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी। उस समय रेडियो का जमाना था, आपके समय लैंडलाइन और टीवी जैसे अन्य सुविधाएं आई थी। मगर आपका बेटा जिस समय में पैदा हुआ है वह इंटरनेट का युग है। आज सभी के पास मोबाइल, कंप्यूटर जैसे अन्य हाइपर टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने भी इंसान को हाईटेक बना दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं सिस्टर, ये मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा है। दरअसल हमारे स्कूल ने बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था। आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा है वह मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। इसी बात के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए उसने क्या लिखा है। प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और देखिए मिस्टर अग्रवाल, मेरा मकसद आपको इंसल्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। आपका बेटा होनहार और होशियार विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप और प्रिंसिपल जिस रूप में उसे ढालना चाहे उस रूप में वो ढल जाते हैं। बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है। जिस तरह के डाटा और बातें आप सेव करना चाहे वह हो जाती हैं। आज जो बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो आप सोच विकसित कर रहे हो वह उसके दिमाग में रह जाएगा। कल को जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएंगे और बच्चे भी हो जाएंगे, तो अगर वो उसके बच्चों से आप
आपको दूर रहने को कहेगा तो क्या आप रह पाएंगे मिस्टर अग्रवाल? बस कीजिए सिस्टर, बस कीजिए। जाने अनजाने में मेरी और मेरी बीवी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए सिस्टर। जो भी हुआ सर, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। अगर आपको माफ़ी मांगनी ही है तो अपने माँ बाप से मांगिए, जिसका दिल आपने बहुत दुखाया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर, मैं अपने माँ बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मैं प्रदीप को उनके पास जाने से मना कर दिया हूँ। पर मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद प्रदीप को मैं उनके पास जाने से मना नहीं करूँगा सिस्टर। ये हुई ना बात मिस्टर अग्रवाल। चलिए अब आपके घर चलते हैं, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे होंगे। सॉरी मम्मी पापा। Albert Einstein once said, education is what remains after one has forgotten what he or she has learned in school. Now, let me invite our friends to perform their dance and express through their steps how the education leaves in our minds the imprint of innovative ideas and the necessary tools of our life to shape it for the better future. बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू धूप है झमसे बिखर, तू है नदियों बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल
यह परंपरा सदा से चली आ रही है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा से सहायक रही है। किस्मत थी जैसे रूठी, उम्मीद भी थी टूटी, अब सारा आसमां है मेरा। खुलने दो बंद मुट्ठी, कर देंगे सबकी छुट्टी, अब सारा आसमां है मेरा। कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी तो होने दो, इन रंजिशों को बंदिशों को तोड़ दो। मारी छलांगे, थोड़ी मस्ती करांगे, अब चल पड़ी है मेरी जिंदगी के पहिए घुमा के। मारी छलांगे, थोड़ी मस्ती करांगे, अब चल पड़ी है मेरी जिंदगी के पहिए घुमा के। मारी छलांगे। लेकिन यह क्या, ये कैसा समय आया जिसने पिछले 2 वर्षों में हमारी इस परंपरा को बदल कर रख दिया। कोरोना जैसी महामारी ने न केवल बाजार बल्कि विद्यालयों और विशेष रूप से बच्चों के आचरण को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अतः अब इन परिस्थितियों में हर माता पिता और शिक्षक को दोहरी जिम्मेदारी निभाना है। तो आइए आज हम प्रण लें कि आप और हम कैसी भी परिस्थिति हो अपने बच्चों के चरित्र निर्माण और उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू, सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। Thank you, dear friends, for your thematic and exciting dance. May I have the privilege to invite Father Manager to share with us his inspiring and enlightening words. Your Lordship, Bishop Theodore Mascarenhas, Administrator, Catholic Diocese Daltonganj, Father Maurice Topo, Director CCMB, Sister Sylvia, Principal St. Paul Academy, Mukesh Kumar, the convener of affiliation, our well-wishers, Simon Matthew Asley, Mumtaz Rahi, Sanjay Soni, and my dear sister Rosna, the principal of Shanti Niwas, dear fathers, sisters, dear parents,
एंड माय डियर स्टूडेंट्स, शायद मुझे लगता है हिंदी में ही बोलना उचित होगा। कहा जाता है हर सफलता के पीछे किसी ना किसी महाअनुभवों का हाथ होता है। हर सफलता के पीछे किसी ना किसी महाअनुभवों का हाथ होता है। और जब मैं अपने जीवन को झांकता हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में विशेषकर सेंट पॉल एकेडमी जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, हमने अथक परिश्रम के बाद जो एफिलिएशन लिया है, इनमें इन महाअनुभवों का विशेष हाथ रहा है। हमारे बिशप स्वामी जो कि काफी क्रियाशील हैं और बार बार मीटिंग के द्वारा, बार बार पुश करने के द्वारा, जब भी मेरी मुलाकात होती थी फोन के द्वारा मिलते थे, हमेशा स्कूल के विषय में पूछते थे कि क्या स्थिति, व्हाट इज द सिचुएशन, परिस्थिति क्या है। और वो अपने स्वयं अपने अनुभवों को मेरे से शेयर करते थे। और वो था कि बिशप बनने के पूर्व जब वे प्रिंसिपल रहे थे पंजाब में, और उन्होंने अपने अथक परिश्रम के द्वारा 8वीं क्लास में अफिलिएशन लिया। ना केवल ये बल्कि फाइनेंस, अन्य चीजें, जब हम बहुत बार हताश भी हो जाते थे, लेकिन पुश बैक हमेशा रहता है। जैसे कि ये हमारे बड़े अधिकारी रहे हैं और बड़े अधिकारी का साथ देना, प्रोत्साहन देना मायने रखता है। और इस सफलता के पीछे मैं पहला श्रेय हमारे बिशप स्वामी को देता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने में साथ दिया। और आज जब मैं इस दिन के लिए मैं आमंत्रित किया कि आप ऑफिशियली आके एफिलिएशन को डिक्लेयर करें, उन्होंने सहर्ष मेरे निवेदन को स्वीकार किया और वे अपना वक्त दिए, समय दिए। मैं पूरे विद्यालय सेंट पॉल एकेडमी परिवार की ओर से स्वामी जी आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फादर मोरिस टोपो, मेरा आगमन जब 2020 में लॉकडाउन के समय आया था, हुआ था, मैं विद्यालय की स्थिति को देख रहा था, पढ़ रहा था। और जब मैं अपने डायरेक्टर जो कि नज़दीकी हैं, इनसे शेयर कर रहा था, इनका अनुभव, चूंकि ये कई विद्यालयों में प्रिंसिपल रह चुके हैं, और इनका अनुभव को जो मैंने साझा किया वो मुझे बांटे। और जब दौड़ धूप का नौबत आया, उन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया। जैसे कहा जाता है कि अकेले चना खड़ा नहीं पड़ता, और इनके साथ काउंसिल जाना, जैक जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इनका अनुभव ने मुझे बहुत सहारा दिया। और जिसके बदौलत जुलाई 2021 में हमने स्टेट से एनओसी प्राप्त किया। और आज भी जब हम बुलाते हैं फादर को, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहते हैं, हमें सहायता देते हैं। फादर जी, आपको भी सेंट पॉल एकेडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर सिल्विया प्रिंसिपल, यूं तो कहें कि एक प्रिंसिपल और मैनेजर और एक प्रिंसिपल का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और हर परिस्थिति में जब मैंने उन्हें शेयरिंग किया, और जब वो शेयरिंग करती है विद्यालय के विषय में, हम दोनों साथ होते हैं। हम दोनों का एक प्रकार का सोच मिलता जुलता है। और इसलिए जैसे मेरा कदम यहाँ पर सेंट पॉल एकेडमी में हुआ, इनका भरपूर सहयोग मुझे मिला और आज भी मिलता है। इसलिए सिस्टर सिल्विया, आपको भी
मैं मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मुकेश कुमार दिख नहीं रहे। अच्छा, मुकेश कुमार के विषय में कहा जाता है, इसका परिचय हमें साइमन आस्ले मैथ्यू ने दिलाया। मैं जानता नहीं था इस व्यक्ति को। ये महान विभूति के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, हाजिर जवाबी, ज्ञान का भंडार, और जब भी इसके पास कुछ समस्या को रखा जाए इसके पास जवाब है और इसके पास हर समस्या का समाधान भी है, चूंकि ज्ञान है। और यही एक ऐसा महाअनुभव है जिनसे मुझे साइमन आस्ले ने मिलाया, और जब से मिलाया तब से आज तक विद्यालय का एक एक चीज जो आज जिस मुकाम तक आज हम पहुंचे हैं, यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा ये अफिलिएशन संभव हुआ है। और आज भी जैसे 30 सितंबर को हमारा डिक्लेरेशन हुआ काउंसिल दिल्ली से, और ये बार बार बोलते रहे कि फादर यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा। 30 तारीख को डिक्लेरेशन हुआ, 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन, शाम को हम लोग इन्होंने पोर्टल खोल दिया। 30 तारीख को ही जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी इस विद्यालय से हो गया। और इस बात से, जैसे फादर डायरेक्टर कह रहे थे, जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो बच्चे इसी विद्यालय से परीक्षा लिखेंगे। और ये सबके पीछे सर मुकेश का हाथ रहा है। मैं शायद शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, शब्द शायद काफी कम पड़ जाएंगे। सर मुकेश हर चीज के लिए विद्यालय परिवार ना केवल कल परसों, लेकिन आने वाले दिनों में आपका शुक्रगुजार और आपका आभारी बना रहेगा। हम सभी विद्यालय परिवार और प्रबंधन आपको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साइमन मैथ्यू आस्ले, अभी मैं सोच रहा हूँ नए बिल्डिंग का शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अफिलिएशन के लिए नए बिल्डिंग, नए विंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कमी है। और मेरा उम्मीद है कि नए विंग, नए बिल्डिंग शुरू करेंगे। आप में से बहुत लोग आगे आएंगे फाइनेंस को लेकर, कुछ सहायता को लेकर, ताकि हम सब मिलकर, क्योंकि ये आपका विद्यालय है, गढ़वा का विद्यालय है, आप सहयोग करेंगे, आपका विद्यालय बढ़ेगा, आगे चलेगा। इसी के साथ बहुत सारे गार्जियन पूछते हैं, मैं आप सबों से भी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम 10th तक का अफिलिएशन प्राप्त कर लिए हैं। क्या आप चाहेंगे कि +2 का भी अफिलिएशन हम लें? ताली मत बजाइए, अभी हाथ उठाइए, देखना चाहता हूं मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका सहयोग रहेगा। जैसे मैंने कहा कि ये बिल्डिंग का होना जरूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपके जो 9वीं क्लास में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है उतना तक हम अफिलिएशन ले लें और आपके बच्चे इंद्रविनाथ से यहाँ ICIC बोर्ड से पास करें। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के बाद कहीं भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकें। चाहेंगे आप? ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा आपसे इसके बाद इंटर का अफिलिएशन लेने का। और उम्मीद करता हूं कि मेरा जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इस क्षेत्र के, उनका सहयोग, फादर डायरेक्टर का सहयोग, पुरोहितों का सहयोग अगर होगा, निश्चित रूप से हम कामयाबी हासिल करेंगे। सबों को आने के लिए और यहाँ सहयोग देने के लिए, शांत भाव से बैठने के लिए, सभी चीज़ों के लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद और शुक्रगुजार अदा करता हूँ। स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, मेरी बातों से और ये हो गए तो जोड़ना भी चाहेंगे। दो ही शब्द बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग हाँ 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 बोलते रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन फादर ने स्पष्ट शायद नहीं बताया। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमें एफिलिएशन नहीं मिलने वाला था, प्रोफेसर बताएगा। बहुत कंसेशन कर दिया है कि अपने टाइम में नया बिल्डिंग आएगा, उनके मेजरमेंट्स होते हैं। ये बिल्डिंग वो मेजरमेंट के पहले बनाया था, उनके मेजरमेंट्स होते हैं। मेरा भी सपना है कि जो बच्चा यहाँ दाखिल होता है 12th तक पास हो जाए, मतलब इंटर यहाँ ख़त्म हो के, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होती है वो नीट, CET सब कुछ संभाल के करना है कि बच्चों को अपने कैरियर में लगाने का। यही एक जगह शुरू कर दिया, वहाँ से पास। तो मेरा पूरा सहयोग है, पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, लेकिन आप लोगों के समर्थन बिना ये नहीं हो सकता। तो इसलिए फादर को काफ़ी 4 करोड़ का कुछ बजट दिया है, अभी बताता हूँ ना, कि लैब्स, लेबोरेटरीज होना चाहिए, लाइब्रेरीज होना चाहिए। धीरे 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 करेंगे, लेकिन आप लोगों का बहुत सही साथ मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पिता का दायित्व होता है कि अपने बच्चों को कुछ लव और टोकन दे सकते हैं, इसलिए मैं पिता खाली हो जाता है लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाता है। स्वामी से आग्रह करूँगा कि हमारे फादर अगस्टिन को सोल पढ़ा करके आज के इस दिन को और अधिक खुशियों में बांट दें। प्रधान अध्यापिका के लिए भी, सिस्टर के लिए भी सोल पढ़ा करके हम लोग गौरवान्वित होंगे। धन्यवाद स्वामी, और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आगे के लिए निरंतर हम लोग की साथ रहेगा, हम लोग का हाथ रहेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जो कारण के लिए है वो है हमारा कष्ट, हार्डवर्क एंड द सक्सेस आफ्टर इट। हम आज एक ही कहेंगे कि जो कुछ ये स्कूल बचपन से देख लिया है, वो आज जो कुछ है, जो सबने अपना एक एक महत्व, अपना एक एक हिस्सा जो कुछ दिए हैं, वो देखने के लिए आज हम उपस्थित शायद भगवान के इच्छा के अनुसार है, नहीं तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। It was not possible, but today I want to say to all of you that Father Augustine जब से यहाँ आए हैं, स्कूल का जो कुछ बिल्डिंग का काम चालू था, हुआ था, उसके बाद में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कष्ट लिए हैं, हर एक, जैसे फादर ऑलरेडी बताए कि कौन कौन उसमें मदद किए हैं। तो आज फादर अगस्टिन ने सबका all the hard work he went through and bore many things. Day and night he worked hard, पूरा दिन रात मेहनत करके ये दिन देखने के लिए it was not possible, but he made it possible through many people. He took the help of them. He became humble himself and asked and did the things which he was not knowing. जैसे फादर अगस्टिन थे, 19 साल प्रिंसिपल थे, पर वो
हिंदी मीडियम के थे, जब यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए आए मैनेजर बन के, तो जो कुछ करने का था सब कुछ नया नहीं था, पर जो कुछ नया था उसके लिए अपने से हम्बल होके अपने सीखने के लिए आगे बढ़े और सब कुछ सीख के कष्ट करके मेहनत करके सबसे परमिशन लेके, जैसे हमारे बिशप स्वामी रहते हैं उनका परमिशन लेना पड़ता है और फादर लोग रहते हैं उनका भी सहयोग लेना होता है। तो सबका सहयोग लेके सबको इकट्ठा करके जोड़ के टीचर लोगों के साथ, हेल्पर्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ जो कुछ आज फादर मेहनत किए हैं उनके लिए हम फादर अगस्टिन खेस को आज सम्मानित करना चाहते हैं। आई नाउ कॉल अपॉन फादर बिशप स्वामी टू felicitate with the bouquet of flower. जो फादर का है वो फादर को मिलना चाहिए। थैंक यू। कस के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी हैं, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल। रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं
जाना जिंदा हूँ मैं तो भी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो सदा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं सदा, मर जाओ या जी लो सदा। Sorry मम्मी पापा, sorry बंटी and all my friends. Sorry, but मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई. I know, सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई. मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है. इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है. सारा खेल मानने का है. जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है. तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी. Thank you, dear friends, for your meaningful and thrilling dance. You made us to realize how education is important to live our life in balanced way by learning how to make a living and how to live. At the end of this event, I would like to thank our today's chief guest, Most Right Reverend, His Lordship, Bishop Theodore Mascarenhas, Father Maurice Toppo, Father Maurice Kujur, and all our well-wishers, Mr. Mukesh Kumar, and all school managing committee members, all their parents, and all those benefactors of our school, Sister Roshna, and you, my dear teachers, students, our helpers. Thank you once again for your valuable time that you have spent with us and for being with us here to witness this event and for your cooperation. So now I invite all of you to please join for the national anthem, and we end our event with the anthem. थोड़ा साइड में